دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 13 پیش کشمیر کارواں۔ میں بیڈ روم کی بیرونی جانب کھلنے والی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس کھڑکی سے کوٹھی کا سامنے والا حصہ دور تک نظر آتا تھا۔ میں نے ذرا سا پردہ ہٹایا اور کوٹھی کے داخلی گیٹ پر نظر ڈالی۔ میری سوچ میں چونکہ ہادم حسین تھا اس لیے غیر ارادی طور پر میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گارڈ روم خالی تھا۔ میں محتاط نظر سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا اور جلد ہی میری مراد بر آئی۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ کو کوٹھی کے گیٹ پر نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ یقیناً کوٹھی کے اندر سے آیا تھا۔ مستقل طور پر گیٹ پر متعین رہنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ وہ گیٹ چھوڑ کر اگر بن بلائے کہیں گیا تھا تو یہ بات اس کے ذہنی فطور کی نشاندہی کرتی تھی۔ پھر جلد ہی اس فطور کی تصدیق بھی ہوگی۔ سیکیورٹی گارڈ نے گیٹ سے ملحق اپنے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہونے کے بعد چکنا نظر سے بالائی منزل کی جانب دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ براہ راست مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں پردے کی اوٹ میں تھا، اس لیے اس کی نظر مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے تردد اور الجھن کے آثار دکھائی دیے۔ 2-3 مرتبہ اس نے مجھے مشکوک انداز میں دیکھا، پھر نگاہ ہٹا لی۔ میں خادم حسین کی دروغ گوئی سے اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ نمک حرامی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ پاشا کے دشمنوں سے مل گیا تھا۔ گزشتہ رات والا واقعہ اس کی زندہ مثال تھی۔ پاشا کے دشمنوں کی ناکامی کا سبب وہی بنا تھا اور اب خادم حسین چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا مجھے، تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ رانا عظمت کی طرف سے اسے میرے لیے کوئی تازہ حکم ملا تھا۔ رانا عظمت کا خیال آتے ہی میں سکندر کے بارے میں سوچنے لگا۔ 2 مرتبہ میرا اس سے سامنا ہو چکا تھا اور دونوں ہی بار اسے منہ کی کھانا پڑی تھی۔ وہ یقیناً میرے بارے میں سخت ترین اقدامات کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ ایک طاقتور MP لالا بشیر کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ اس سے کسی بھی اوچھی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک مرتبہ پھر فرید پاشا کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ میرا چہرہ دیکھ کر بھانپ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، وجدان، تم تو آرام کرنے کی غرض سے اوپر گئے تھے، مگر تمہاری صورت کسی اندرونی بے آرامی کی نشاندہی کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے خادم حسین کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور پوچھا، وہ جگہ کہاں ہے جس کا بندوبست کرنے کا تم نے یقین دلایا تھا؟ میں فوری طور پر خادم حسین کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ اس بندے کو مزید ڈھیل دینا مناسب نہیں ہوگا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو وجدان، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ تمہارے پیچھے کیوں لگ گیا ہے۔ میں نے کہا، اس کا بہت ہی خاص جواب ہے، اور وہ یہ کہ میں نے 2 مرتبہ سکندر کا مشن فیل کیا ہے۔ وہ میری طرف سے بہت ادھار کھائے بیٹھا ہے۔ حالات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خادم حسین تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا ہے، اور سکندر بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ عین ممکن ہے اس نے خادم حسین کو میری نگرانی اور ٹو کے سلسلے میں کچھ خصوصی ہدایات جاری کی ہوں گی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اب میں خادم حسین کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو پہلے ہی فرصت میں کر ڈالو۔ میں نے کہا، یہ اسی لمحے میں ممکن ہے جب اسے تم میرے حوالے کرو گے۔ تم نے بتایا تھا کہ دوسرے سیکیورٹی گارڈ کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں خادم حسین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ دوسرے گارڈ کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا کہہ دو۔ میں نے ذرا توقف کے بعد اضافہ کیا، اس کے ساتھ ہی چند روز کے لیے اپنی حفاظت کے نظام پر گہری نظر رکھو۔ دشمنوں کو اپنی طرف سے کوئی موقع نہ دو۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے مجھے اس مقام کا پتہ سمجھانے لگا جہاں میں خادم حسین کو ٹریٹ کرنے کے لیے لے کے جانے والا تھا۔ وہ ایک خالی کوٹھی تھی جہاں کچھ عرصے پہلے فرید پاشا کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ گلبرگ 3 والی کوٹھی میں منتقل ہونے کے بعد مذکورہ کوٹھی میں تالا لگا دیا گیا تھا۔ شاید وہ اس کوٹھی کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ اس کوٹھی میں ایک خفیہ تہخانہ بھی موجود تھا۔ بات ختم کرنے کے بعد فرید پاشا نے کہا، میں تمہیں اس کوٹھی کی چابیاں دے دیتا ہوں، کیا تم اکیلے وہاں پہنچ جاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کیا خادم حسین نے بھی وہ کوٹھی دیکھ رکھی ہے؟ ہاں، یہ 1-2 مرتبہ وہاں گیا ہے، پاشا نے کہا۔ پارٹیوں کو کوٹھی دکھانے کے لیے میں اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، بات بن گئی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پاشا نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے بات اس کے پلے نہ پڑی ہو۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، تم نے خادم حسین کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ میرا مطلب ہے وہ میرے بارے میں کیا جانتا ہے؟
खसूसन मेरी यहाँ आमद और तुमसे मुलाकात के हवाले से। उसके इल्म में यही है कि तुम मेरे दोस्त हो और कराची से आए हो। पाशा ने बताया कि चंद रोज तक यहाँ क्याम करोगे और फिर वापस चले जाओगे। मैंने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम हादम हुसैन को यहाँ बुलाओ। अब तुम्हारा ये दोस्त यानी मैं तुम्हारी साबिक कोठी को खरीदने में दिलचस्पी ले रहा हूँ और हादम हुसैन मुझे वो कोठी दिखाने के लिए अपने साथ ले जाएगा। गुड आइडिया, वो तौसीफी अंदाज में बोला। वहीदान, तुम्हें तो स्पाई राइटर होना चाहिए। बाहुदा इतनी तेजी से किसी राइटर का दिमाग ही सोच सकता है। मैंने कहा, दिमाग का तो काम ही सोचना है। ये मुसलसल सोचता रहता है। इसकी सोच से फायदा उठाना हुनरमंदी है। लिखारी हजरात अपने तहय्युल के जोर पर इस सोच को कागज पर मुंतकिल कर देते हैं और अमल के जरिए दूसरे लोग कामयाबी हासिल करते हैं, क्योंकि तहय्युल के जोर पर सोच को कागज पर मुंतकिल करना उनका काम है और अमल की जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डालकर वो मुतमईन हो जाते हैं। मगर मैं एक अमली इंसान हूँ, इसलिए तुम मुझे स्पाई राइटर ना ही बनाओ तो अच्छा है। पाशा, मैं सोच विचार के बाद जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ फौरन उसे अपने अमल में ले आता हूँ। बहुत अच्छा करते हो यार, वो तबस्सुम रेज लहजे में बोला। मैं अभी इस मरदूद हादम हुसैन को बुलाकर तुम्हारे साथ रवाना करता हूँ। हादम हुसैन को अपने पास बुलाने से कबल फरीद पाशा ने मुझे उस तहखाने का महल्ले वकू और उसमें दाखिले के रास्ते से तफसीलन आगाह कर दिया। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। वो बोला, मेरे गिराज में इस वक्त 3 गाड़ियां खड़ी हैं, तुम जो भी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। मैंने वो गाड़ियां देखी हैं। मैंने कहा, वो तीनों जदीद और कीमती गाड़ियां हैं, लेकिन एक बात की मुझे हैरत है, तुमने इन गाड़ियों को ड्राइव करने के लिए कोई ड्राइवर वगैरह नहीं रखा हुआ। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, ड्राइवर है, लेकिन आजकल वो अपने गांव छुट्टी पर गया हुआ है, 2-3 दिन में वापस आने वाला है। मुश्ताक ड्राइवर की बहन की शादी है। वो तीनों गाड़ियां बड़ी ही महारत से चलाता है। नायला का ख्याल था कि हम 10 दिन के लिए किसी और ड्राइवर को अरेंज कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये मुनासिब न समझा। कभी कभार हादम हुसैन भी ड्राइवर के फराइज सरंजाम दे लेता है, मगर अब तो मैं उसे किसी गाड़ी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। वो आज आखिरी मर्तबा तुम्हारी गाड़ी को ड्राइव करेगा फरीद, मैंने मायनी हेज अंदाज में कहा। उसके बाद तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बताओ, इस दफा हादम हुसैन से कौन सी गाड़ी की ड्राइवरी कराई जाए? मेरा ख्याल है तुम निसान ले जाओ। फरीद पाशा ने कहा, निसान पेट्रोल आमतौर पर मेरे इस्तेमाल में रहती है, ये बड़ी ही काबिल एतमाद जीप है। निसान पेट्रोल के अलावा पाशा के गैरेज में होंडा अकॉर्ड और टोयोटा करोला गाड़ियां मौजूद थी। इन कीमती गाड़ियों और आलीशान कोठी को देखकर अंदाजा होता था कि फरीद पाशा अपने शोबे में किसी किंग की तरह है। फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड ने भी उसकी सरबत को 8 चांद लगा रखे थे। वो बिलाशुबा उन लोगों में से था जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं और सारी जिंदगी सोने का ताज पहनकर गुजार देते हैं। कोठी फासलिया कॉलोनी और शाह जमाल के संगम पर वाक़या थी। कोठी में दाखिल होने के बाद ऐसी अदाकारी करता रहा मैं जैसे मैं कोई खरीदार हूँ। थोड़ी देर तक मैं कोठी की एक एक चीज का तनकीदी जायजा लेता रहा। फिर घुमा फिरा कर मैं हादम हुसैन को उस मुकाम पर ले आया जहाँ खुफिया तहखाना जाने का रास्ता था। वैसे तो वो पूरी कोठी ही मेरे मिशन के लिए मौजूद थी। अब हम इसके अंदर जाएंगे, मैंने हादम हुसैन से मुहातब होते हुए कहा। उसने हैरत से मुझे देखा और फिर पूछा कि इसके अंदर क्या है। मैंने कहा कि ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, इसके नीचे खुफिया तहखाने का रास्ता है। दरअसल मैं इस तहखाने को देखना चाहता हूँ। इसी तहखाने की वजह से मैंने ये कोठी खरीदने में दिलचस्पी ली है। मुझे किसी ऐसी ही कोठी की तलाश थी जिसमें खुफिया तहखाना मौजूद हो। वो चलने में बेयकीनी और तजब्जुब के अंदाज से मुझे तकता रहा। फिर उलझनज़दा लहजे में बोला, जनाब, मैं इस कोठी पर भी कुछ अर्सा ड्यूटी दे चुका हूँ। आप जिस तहखाने का जिक्र कर रहे हैं मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। जरूरी नहीं कि पाशा तुम्हें अपनी हर बात से आगाह करे। आप पाशा साहब के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपकी बात का यकीन कर लेता हूँ। वो तफहीमी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, वरना सच्ची बात तो ये है कि ये तहखाना मेरे लिए किसी इंकशाफ से कम नहीं। चलो इसे इंकशाफ ही समझ लो, मैंने कदरे सूखे लहजे में कहा, मगर सवाल जवाब में वक्त जाया न करो, मुझे और भी बहुत से काम है। जी जनाब। वो सवाल करने से बात ना आया। हम इस तहखाने के अंदर कैसे जाएंगे? क्या पाशा साहब ने आपको खुफिया तहखाने तक रसाई का तरीका बता दिया है? हाँ, बता दिया है, मैंने स्पार्ट लहजे में कहा। वो एक मरतबा फिर नाकाबिले यकीन नजर से मुझे देखने लगा। अगले 5 मिनट में हम इस खुफिया तहखाने के अंदर पहुंच चुके थे। पाशा ने मुझे बताया था कि वहां लाइट का माकूल बंदोबस्त है।
लिहाजा मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तहखाने में पहुंचने के बाद हादम हुसैन बौखलाहट का शिकार नजर आने लगा। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो कुछ बिदका हुआ लग रहा था, जैसे लाशौरी तौर पर उसने किसी खतरे की बू सूंघ ली हो। उसने बगौर तहखाने का जायजा लेने के बाद सरसराती हुई आवाज में कहा, हम इस तहखाने के अंदर क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं। जुमला खत्म करते ही मैंने उसे एक जोरदार धक्का दिया और पलटकर बड़ी सुरत से तहखाने के दरवाजे को अंदर से बोलट कर दिया। वो मेरा गैर मुतवक्का धक्का खाने के बाद मुंह के बल तहखाने के पुख्ता फर्श पर गिरा और उसके हलक से एक वहशतनाक करा बरामद हुई, लेकिन उसकी आहो बगा और चीहो पुकार तहखाने में ही गूंज कर रह गई और तहखाने से बाहर जाने वाली नहीं थी। इससे पहले कि वो उठकर खड़ा होता, मैं उससे एक कदम की दूरी पर पहुंच गया। हादम हुसैन ने फर्श पर पड़े पड़े बड़े ही सरासीमा नजर से मुझे देखा। मेरे ताज़ा तरीन सलूक से वो भांप चुका था कि गड़बड़ हो चुकी है। वो चुकन्ना नजर आने से हासा मशकूक हो चुका था। मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ और उलझन ज़दा लहजे में पूछ बैठा, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? इसलिए। मेरे भारी बूट की तूफानी जरब उसके चेहरे पर पड़ी तो वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ पीछे कूद गया। मैंने फिर उसे संभलने का मौका नहीं दिया और आगे बढ़कर ठोकरों पर रख लिया। मेरे हाथ और पांव मशीनी अंदाज में हरकत कर रहे थे। वो मुझसे बुरी तरह पिटने लगा तो उसके जहन में मुदाफियत और जवाबी हमले का ख्याल आया। शायद सूरत हाल बहुत देर से उसकी समझ में आई थी। अचानक वो तन कर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने एक नीची राउंड हाउस चलाई। वो एक कदम पीछे हटकर बचा और मुझे अपने बाजू में जकड़ने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं उसकी बाहों में जाने का कतन कोई इरादा नहीं रखता था, चुनाचा उसे अपनी फैली हुई बाहों के साथ पीछे को उलटना पड़ा। मैंने झुकाई देकर एक जबरदस्त स्वीप मारी थी। हादम हुसैन की उम्र 50 के करीब थी। वो रिटायर्ड फौजी था, इसलिए उसका बदन और ताकत तसल्ली बख्श थे। वो अपने तेज डट कर मेरा मुकाबला कर रहा था, मगर उसके डटने की मेरे सामने पेश नहीं चल रही थी। इस मर्तबा वो मुंह के बल तहखाने के पुख्ता फर्श से टकराया। लिहाजा जब वो दोबारा उठकर खड़ा हुआ तो उसकी नाक से खून जारी हो चुका था। मैंने तहकीर अमेज अंदाज में कहा, हादम हुसैन, सिक्योरिटी का काम छोड़कर चूड़ियां पहन लो। हाँ अपने बदन को अजाब में क्यों डालते हो? तुम तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, पाशा और उसकी कोठी की हिफाजत करोगे? उसने नफरत अमेज अंदाज से मुझे देखा और बोला, तुम्हारा बड़ा इबरतनाक खशर होने वाला है वजदान। तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। उसके मानीज़ अल्फाज ने मुझे कुछ ज्यादा नहीं चौंकाया। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मैं यही सब कुछ जानने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैंने महसूस किया है तुम्हारे पास मुफीद मालूमात का एक जहीरा जमा है। बात खत्म करते ही मैंने उस पर हमला कर दिया। वो इस वक्त हाथ की पुष्ट से नाक से बहने वाले खून को साफ कर रहा था। मैंने बड़ी ही तेजी से किक चलाई। थोड़ा सा वो लड़खड़ाया, मगर उसे संभलने का मैंने मौका नहीं दिया और एक जोरदार साइड किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। वो किसी गठरी की मानिंद हवा में परवाज करते हुए दीवार से जा टकराया। मैं जस भरकर उसके सर पर पहुंच गया और लात मुक्के से उसकी तवाजा करने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत जवाब देगी। वो बुरी तरह हाँफने लगा। मेरे धुआंधार पंचिस ने उसके चेहरे की खाल को जा बजा उधेड़ कर रख दिया था और वो लहूलुहान हो रहा था। मैंने उसे गिरबान को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया और वहशतनाक लहजे में दरियाफ्त किया, इतना काफी है या मैं तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए अपने हाथ पांव को और जहमत दूं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो हकलाहट अमीज लहजे में बोला, मैं तुम्हारी जुबान से सच सुनना चाहता हूँ। कौन सा सच? कल रात को पाशा की कोठी में जो वाकया पेश आया, उसकी हकीकत क्या है? उसे घिसा पिटा जवाब दिया। चंद गुंडे कोठी में घुस आए थे और उन्होंने नायला बीबी को अगवा करने की कोशिश। उसका जुमला अधूरा रह गया। मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही एक क़यामत हेज चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। उसके साथ ही मैंने गिरबान पकड़कर उसे झंझोड़ा और वहशतनाक अंदाज में पूछा, तुम मुझे फरीद पाशा न समझना जो तुम्हारे इस बोगस जवाब से मुतमईन हो जाएगा। मैं हकीकत जानना चाहता हूँ और मुझे यकीन है तुम इस हकीकत से बाखबर हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसकी आंखों में मुझे खौफ के साए लहराते नजर आए। जवाब देने से पहले वो तजब्जुब का शिकार हो गया। मैंने इस मौके पर उसकी खौफसदगी में मजीद इजाफा करते हुए थोड़ी सी और मुरम्मत कर डाली। जब उसे यकीन हो गया कि मैं किसी सूरत भी उसकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो वो ताउन के लिए आमादा हो गया। सच बोलने की सूरत में मैंने उसकी जान बख्शी का वादा कर लिया। हादम हुसैन ने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताया कि वो राना अजमत के लिए काम कर रहा था। उसके बयान से मेरे शकूक की तस्दीक हो गई तो मैंने पूछा, ठीक है, मैंने माना कि इस वक्त तुम 2 अफराद का नमक खा रहे हो, एक का नमक हलाल कर रहे हो और दूसरे का हराम। हर 2 सूरत में
तुम नमक हराम ही हो। बहरहाल मैं एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका, फिर होनहार लहजे में दरियाफ्त किया, तुम किसके दोस्त हो और किसके दुश्मन, मुझे इससे गरज नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी टो में क्यों लगे हुए थे? मुझे पाशा की कोठी में आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे। वो समझ गया मेरा इशारा किस तरफ था, ताहम अनजान बजते हुए बोला, मैंने तुम्हारी कब टो ली है? यहाँ आने से थोड़ी देर पहले, मैंने सफाक लहजे में कहा। जब मैं पाशा की कोठी की बलाई मंजिल के बेडरूम में आराम कर रहा था तो तुम खिड़की के एक कोने से मुझे झांक रहे थे। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, और अंधेरे में तीर छोड़ना जरूरी समझा। मैंने खुद तुम्हें ऊपर से नीचे जाते हुए देखा था। फिर अपने बेडरूम में पहुंचने के बाद भी तुम कनखियों से बेडरूम की खिड़की की तरफ 2-3 मरतबा देखा था। क्या तुम मेरी बातों को झुटला सकते हो? कोई जवाब देने की बजाय उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला, जब तुम्हें सब कुछ मालूम है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो नहीं मालूम वो जानना चाहता हूँ। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? ये बात तो तुम ही बताओगे। वो शिकिस्त खुर्दा अंदाज में बोला, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हारा असल दुश्मन राना अजमत का भतीजा है, लाला बशीर, एमपीए का बेटा सिकंदर। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, तुमने पिछले 1-2 दिन से उसे खुद अपना दुश्मन बना लिया है। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे तमाम हदशात सही साबित हो रहे थे। गुज़श्ता रोज मैंने और सदफ ने सिकंदर को खास जिल्लत और रुसवाई से दो चार किया था। पिछली रात भी वो मेरे हाथों बुरी तरह पिटा था, लेकिन इस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये वो सिकंदर है। अच्छा वो मुझे अच्छी तरह पहचान चुका था। इसका मतलब यही था कि पाशा की कोठी से फरार होने के बाद सिकंदर ने हादम हुसैन को मेरी निगरानी का फरीजा सौंपा था। ये तय है कि उसे ये बात मालूम नहीं थी कि मैं फरीद पाशा के पास एक मेहमान दोस्त की हैसियत से ठहरा हुआ हूँ। इस तनाजर में मैंने हादम हुसैन से पूछा, क्या आज दिन में किसी वक्त सिकंदर से तुम्हारी बात हुई या मुलाकात हुई थी? नहीं, उसे नफी में जवाब दिया। ना मुलाकात हुई ना बातचीत हुई, लेकिन उसका पैगाम मुझ तक पहुंचा था। तुम्हारे बारे में मुझे हसूसी हदायत दी गई थी और मैं देख रहा हूँ तुम वैसे ही साबित हो रहे हो। मैंने पूछा कि मेरे बारे में तुम्हें किस किस्म की हदायत दी गई थी? यही कि तुम एक खतरनाक किस्म के मुजरम हो, मुसलमानों वाला नाम रखकर काफरों के लिए काम करते हो। तुम चंद रोज पहले गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल हुए हो। इंडिया की बंदाम जबाना तंजीम राह से तुम्हारा ताल्लुक है। तुम पाशा के पास पनाह लेकर किसी खतरनाक मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने का इरादा रखते हो, इसलिए मुझे तुम पर कड़ी नजर रखना चाहिए उस वक्त तक जब तक तुम कोठी के अंदर हो। जैसे ही तुम कोठी से बाहर निकलोगे वो लोग तुम्हें अपनी निगरानी में ले लेंगे, और मेरा ख्याल है इस कोठी से निकलकर इस कोठी के आने के दौरान में हमारा ताकुब किया गया है। हादम हुसैन की ये खौफनाक मालूमात मेरी समात में अंडेल कर खामोश हुआ तो मैं हैरत और तशवीश के समुद्र में गोताजन हो चुका था। सिकंदर को मैंने सिकंदर को कल जिंदगी में पहली मर्तबा उसी रेस्टोरेंट में देखा था। हम एक दूसरे को जानते थे और ना ही पहचानते थे। दूसरी मुलाकात गुज़श्ता शब सरसरी अंदाज में हुई थी, मगर हादम हुसैन ने जो तशवीशनाक इंकशाफ किया था वो मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रहा था। मेरे खिलाफ इस किस्म का प्रोपेगेंडा उस वक्त किया गया था जब मैं अंदरूनी सिंध से होते हुए कराची पहुंचा था, तो मुझे रा का एजेंट और एक खतरनाक मुजरिम साबित करने की कोशिश की गई थी, और इस कोशिश के पीछे जहन्नम मकानी मियां जाहिद हुसैन का हाथ था। तो क्या सिकंदर भी किसी तौर चौधरी नवाजिश अली की मशीनरी का कोई कलपुर्जा था? ये सवाल बड़ी ही सूरत से मेरे जहन में उभरा तो मेरी तशवीश सो चंद होगी। उसी वक्त मुझे याद आया कि एक मौके पर कल सदफ ने मेरा तारुफ करवाते हुए सिकंदर के सामने कहा था कि ये वजदान है, मेरा क्लास फेलो, ये कराची से आए हैं। इतने अहम लोगों को मुसीबतें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सदफ ने जोश जज्बात में वजदान की हैसियत से मेरा तारुफ करवाया था, लेकिन उसकी ये हमाकत मुझे पसंद नहीं आई थी। बाद में जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने हलुल मुश्किलात एक अंग्रेजी लफ्ज सॉरी से काम चला लिया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल बता रही थी कि काम चला नहीं बल्कि बुरी तरह बिगड़ के रह गया था। इस मौके पर सिकंदर के अलावा पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर मुजीब राठौर का बेटा तौसीफ, फुरकान हा का सपूत बाबर और मुकामी एसएचओ का लड़का सलीम भी रेस्टोरेंट में मौजूद थे। वजदान की हैसियत से मेरा तारुफ कोई भी क़यामत ढा सकता था। ये तमाम अफराद सियासी, माली और कानूनी तौर पर मजबूत पार्टियां थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक सिकंदर का हाथ धोकर पीछे पड़ जाना यही जाहिर करता था कि वो वास्ता या बिलवास्ता
चौधरी नवाज़िश अली या उसके गुमाश्तू से मुतल्लिक था, और मेरे लिए ये नहायत ही सनसनीखेज इत्तला थी। हालात की संगीनी से अंदाजा हो रहा था कि चौधरी तक पहुंचने से पहले मुझे चौधरी के बहुत से नमकख्वारों की लाशें गिराना होंगी। एक बात की मुझे हैरत थी कि फरीद पाशा सिकंदर के इस रूप से वाकिफ क्यों नहीं था। अगर वो चौधरी नवाज़िश अली और सिकंदर के किसी ताल्लुक से आगाह होता तो वो मुझे जरूर बताता। यही बात समझ में आती थी। इन वाहियात हालात से सिकंदर की वाबस्तगी ताजा बताजा थी। बिल्कुल यही बात थी, वरना फरीद पाशा इस सिलसिले में मुझे जरूर कुछ बताता। सिकंदर कल रेस्टोरेंट में मुझसे मुतारिफ हुआ और आज किसी दीरीना दुश्मन की मानद मेरे ताक़ुब में लग गया था, जिससे जाहिर होता था कि चौधरी नवाज़िश अली ग्रुप से वो नया बंदा था। हादम हुसैन ने मेरी जिन खतरनाक खसूसियात को घुमाया था और उनके पेश नजर मुझे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत थी। मैं दोबारा सिक्योरिटी गार्ड हादम हुसैन की जानिब मुतवज्जा हो गया। हादम हुसैन, मैं तुम्हारी फराहम करदा इत्तलात पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन बाद में अगर इनमें से कोई भी बात गलत साबित हुई तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सपाट आवाज में बोला, मैंने एक एक लफ्ज तुम्हें सच बताया है, यकीन करना या ना करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, थोड़ी देर पहले तुमने बड़े ही वसौक से कहा कि पाशा की कोठी से निकलने के बाद से यहाँ पहुँचने तक हमारा ताकुब किया गया है। क्या तुम ताकुब करने वालों को जानते हो? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही पहचानता हूँ, वो कतियत से बोला। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सिकंदर के आदमी हो सकते हैं। हादम हुसैन के बयान से जाहिर होता था कि ताकुब करने वालों में सिकंदर शामिल नहीं। यहाँ तक आते हुए निसान पेट्रोल को हादम हुसैन ने ही ड्राइव किया था और वो इस वक्त इस बराए फरोख्त कोठी के अंदर खड़ी थी। मैं मुताकिब अफराद को देख नहीं पाया था। मैंने हादम हुसैन से पूछा, हमारा ताकुब करने वालों की तादाद क्या है और उन्होंने हमारे ताकुब के लिए कौन सी सवारी इस्तेमाल की है? हादम हुसैन ने बताया कि वो 3 अफराद हैं, एक ड्राइविंग सीट पर और 2 पीछे, और उनके पास सफेद हाई रूफ है। वो हमारे पाशा की कोठी से रवाना होते ही पीछे लग गए थे और यहाँ तक जैसे ही हमारे दुम से बंदे चले आए। मैंने इस कोठी में दाखिल होते वक्त भी उनकी झलक देखी थी। उन्होंने अपनी हाई रूफ को शाह जमाल रोड पर एक ऐसी जगह रोका था जहाँ से इस कोठी का गेट नजर आता रहे। वो एक लम्हे को सांस लेने को रुका, फिर मजीद कहा, मुझे यकीन है कि वो इस वक्त भी वहाँ मौजूद होंगे। उसका यकीन मेरे लिए तशवीश का पैगाम्बर था। मैंने गहरी नजर से उसे घूर कर देखा और सख्त लहजे में सवाल किया, जब पाशा की कोठी से रवाना होते ही तुम्हें अपने ताकुब का एहसास हो गया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी थी, वो सादगी से बोला। मैंने कहा, और अगर मैं तुम्हारा ये हाल ना करता तो तुम अब भी जुबान न खोलते। जाहिर है उसने मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफा किया। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, जानते हो इस नमक हरामी के बदले में मैं और पाशा तुम्हारा क्या हशर करने वाले हैं? मुझे इसकी परवाह नहीं। वो बेनियाजी से बोला, मैदान जंग में यही होता है, किसी एक पार्टी का साथ दें तो दूसरी से दुश्मनी करनी पड़ती है और किसका क्या हशर होगा ये कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम अपने हशर के बारे में पूछो, मुझे नहीं लगता कि तुम जिंदा बच सकोगे। सिकंदर और राना अजमत बहुत ही खतरनाक लोग हैं। लाला बशीर की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं और इक्तदार ने उनकी खतरनाकी को और भी बढ़ा दिया है। तुम्हें अंदाजा नहीं वो तुम्हारी तलाश और हलूस खसूल में कहां तक जा सकते हैं। मैंने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम अपने आंसू से मुझे डराने की कोशिश ना करो। इस किस्म के ताकतवर गुंडा अनासर मेरे बूटों की तस्मों से बंधे रहते हैं। मैं उनकी सारी बदमाशी और अकड़फोन नाक के रस्ते निकाल दूंगा। उसे मेरी इस धमकी के जवाब में कुछ न कहा और बड़ी ही कीना तोज नजर से मुझे तकता रहा। वो शिकस्त खुर्दगी की हालत में तहखाने के पुख्ता और सीलन ज़दा फर्श पर बैठा था और मुझसे हर मुमकिन तावन के लिए तैयार नजर आता था। सिकंदर और राना अजमत ने अब तक मेरे साथ जो कुछ किया था उस हवाले से मैं हर मुमकिन मालूमात उससे ले चुका था। उनसे मैंने अपने तौर पर यही नतीजा अहज किया था कि राना अजमत की दुश्मनी सरासर फरीद पाशा से थी और वजह नजा नाला के सिवा कोई नहीं हो सकती थी। गुज़श्ता रात पाशा की कोठी पर पेश आने वाला वाकया भी इसी जानिब इशारा करता है और सिकंदर हम ठोंक कर हालिस्तन मेरे मुकाबले में मैदान में उतर आया था और इस दुश्मनी के ताकुब में अगर बहुत दूर तक झांका जाता तो इस खेल के डांडे चौधरी नवाज़िश अली से मिलते नजर आते थे। सिकंदर हाल ही में या पहले से चौधरी नवाज़िश अली से मुंसलिक था। अगर ऐसा होता तो मेरे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी था कि सिकंदर का चौधरी से किस किस्म का ताल्लुक था।
वैसे मेरा ख्याल ये था कि सिकंदर कल रेस्टोरेंट में होने वाली मुलाकात से पहले मुझसे वाकिफ नहीं था और ना ही सदफ की जुबानी। मेरा नाम सुनते ही वो चौंक उठता। इससे एक बात वाज़ह हो गई थी कि वो ताज़ा ताज़ा मेरी मोहम्मती जिंदगी में वारिद हुआ था। इत्तमाम हुज्जत के तौर पर मैंने हादम हुसैन से पूछ लिया, क्या तुम चौधरी नवाजिश अली को जानते हो? कौन चौधरी नवाजिश अली? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। उसके अंदाज से मुझे पता चल गया कि वो चौधरी नवाजिश अली से वाकिफ नहीं था। मैं मुतलाशी नजर से तहखाने में इधर उधर देखने लगा। हादम हुसैन से मजीद मालूमात हासिल नहीं हो सकती थी और जब तक मैं उसके बारे में कोई हतमी फैसला करता, उसका कैदोबंद में रहना जरूरी था। हादम हुसैन के बारे में फैसला करने के लिए फरीद पाशा से मशवरा करना भी अहम था। थोड़ी सी कोशिश और तलाश के बाद वही तहखाने की एक अलमारी में मुझे अपनी मतलूबा शय मिल गई। ये एक मजबूत नायलॉन की मोटी डोरी थी। मैं डोरी के लच्छे को खोलते हुए हादम हुसैन की तरफ बढ़ा तो उसकी आंखों में उलझन थी। वो सरासीमा लहजे में मुझसे पूछने लगा, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शाफी बंदोबस्त, मैंने सफाकी से कहा। वो चिल्लाया, मगर तुमने वादा किया था अगर मैं तुम्हारे सवालों के ठीक ठाक जवाब दे दूं तो तुम मेरी जान के दुश्मन नहीं बनोगे। मैं जुबान का धनी हूँ हादम हुसैन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे अपना वादा याद है, मैंने तावन की सूरत में तुम्हें जान बख्शी का यकीन दिलाया था। मैं तुम्हें जान से नहीं गुजारूंगा, बल्कि हाथ पांव बांधकर इसी तहखाने में छोड़ जाऊंगा। यहाँ तहखाने में हवा और रोशनी का मुनासिब गुजर है, तुम्हें किसी किस्म की घुटन का सामना नहीं करना पड़ेगा और भूखे प्यासे तुम उस वक्त तक जिंदा रह सकते हो जब तक कातबे तकदीर ने तुम्हारी जिंदगी लिख रखी है। मैंने थोड़ा सा तवक्कुफ करने के बाद इजाफा किया, वैसे तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द पाशा से बात करके तुम्हारे बारे में कोई हतमी फैसला ले लूंगा। तुम्हें ज्यादा दिनों तक इस तहखाने में भूखा प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। वो वहशतज़दा नजर से मुझे तकने लगा। उसने मेरे अज़ाइम को अच्छी तरह भांप लिया था। उसे यकीन हो चला था कि मैं किसी भी कीमत पर अपने इरादे से बाज नहीं आऊंगा, ताहम मुज़ाहमत करना उसका हक था। मैंने जब उसे नायलॉन की मजबूत डोरी से जकड़ने की कोशिश की तो उसने बुरी तरह हाथ पांव फड़काए। उसे काबू करने के लिए मुझे कुछ तारीही और मौसर हरबे इस्तेमाल करना पड़े। मजीद थोड़ी सी ठोका पीटी के बाद वो नॉर्मल हो गया। मैं मस्कूरा डोरी को खींचता कर उसकी मजबूती का अंदाजा लगा चुका था। उसे अगर जलाया या तेजदार आले की मदद से ना काटा जाता तो वो जोर आजमाई के नतीजे में टूटने या खुलने वाली नहीं थी। अगर उसकी गिरोह को खोलने या ढीला करने के लिए जोर लगाया जाता तो वो मजीद बंदिशी हो जाती, गोया उनकी अजाबनाकी में 70 गुना इजाफा हो जाता। मैंने हादम हुसैन को ऊंधा फरज पर गिरा दिया और उसकी कमर पर सवार हो गया। पहले मैंने उसके दोनों बाजुओं को अकबी जानिब मोड़कर कलाई पर कलाई को क्रॉस किया और दोनों कलाइयों के संगम को नायलॉन की डोरी से कसकर बांध दिया। उसके बाद मैंने अपना रुख तब्दील करके उसकी दोनों टांगों को घुटनों के जोड़ों से मोड़ लिया और दोनों पाँवों को उसके कूलों के नजदीक क्रॉस करके टखनों को भी अच्छी तरह मजबूती से बांध दिया जैसे कलाइयों को बांधा था। इस काम से फारिग होने के बाद मैं उसकी पुश्त से उतर आया और दोनों बंधे हुए मकामात को डोरी के कई फेरे देकर इंटरलिंक कर दिया। जिस तरह तिंकू की टोकरी को उठाने के लिए हैंडल होता है, बिल्कुल इसी शक्ल की एक नायलॉनी गिरफ्त तैयार हो गई थी। कोई भी ताकतवर आदमी इस हैंडलनुमा गिरफ्त से सिक्योरिटी गार्ड हादम हुसैन को ऊपर उठा सकता था, लेकिन मेरा आइडिया अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। मैंने उसकी गिरफ्त को मजीद मजबूत करने के लिए नायलॉन की डोरी को 5 मरतबा उसकी कमर से मजीद गिरफ्त को मजबूत करने के लिए पेचीदा गिरहें लगाई। बची हुई डोरी को मैंने दोहरा और अतहरा करके कदरे मोटी डोरी तैयार कर ली थी और इस मोटी डोरी के एक सिरे को पहले से तैयार शुदा गिरफ्त से तसल्ली बख्श अंदाज में मुंसलिक करने के बाद मुझे किसी कुर्सी या मेज की तलाश थी जिस पर हादम हुसैन के जकड़े हुए जिस्म को रखकर मैं मोटी डोरी के दूसरे सिरे को छत से नस्ब कुंडे में बांध सकता। थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे एक बोसीदा मेज मिल गई। मैंने इस मेज को तहखाने में लाने के बाद ऐन कुंडे के नीचे रख दिया। मज़कूरा मेज के चारों टांगों में बेहद नहीफी और नजारी पाई जाती थी। मुझे एक लम्हे को हदशा महसूस हुआ कि मैं जैसे ही हादम हुसैन के बंदिशी वजन को इस पर रखूंगा ये चारों पाए चित हो जाएगी, मगर अमलन उस मेज ने मेरे हदशे की नफी कर दी। पुराने जमाने की चीजें और इंसान बेपनाह कुव्वत और बर्दाश्त के मालिक होते थे। इंसानों की हालिस अशिया से खिलाई पिलाई होती थी और चीजों की तैयारी में हालिस माल लगाया जाता था। वो बज़ाहिर महदूश नजर आने वाली मेज बहुत ही तसल्ली बख्श और काबिल इत्मीनान साबित हुई। उसे न सिर्फ हादम हुसैन को बल्कि मेरे बोझ को भी निहायती खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। मैंने निहायती सूरत का मुजाहरा करते हुए मोटी डोरी के
आहरी सिरे को छत वाले कुंडे में मजबूती से बांध दिया। मेज से नीचे उतरने के बाद मैंने हादम हुसैन की गर्दन को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अल्लाह हाफिज सिक्योरिटी गार्ड साहब, मुझे उम्मीद है कि तुम पाशा के यहाँ पहुंचने तक जिंदा रहोगे। अगर तुम्हारा जहन बहुत कमजोर है तो ज्यादा से ज्यादा तुम बेहोश हो सकते हो। इस ख्याल को कभी अपने जहन से न गुजरने देना कि तुम्हारा कोई हैरहा यहाँ आएगा और तुम्हें बचाकर ले जाएगा। इस तहखाने का राज सिर्फ 2 अफराद जानते हैं, एक फरीद पाशा और दूसरा मैं तुम्हें निशाने इबरत बनाकर यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। फरीद पाशा जल्द या बदेर तुम्हारी हैरो आफियत दरियाफ्त करने यहाँ आएगा। मैंने उसकी जुबान बंदी करने के लिए मुंह में कपड़ा वगैरह ठोंसने की जरूरत महसूस नहीं की थी, क्योंकि इस जेर जमीन कमरे में पैदा होने वाली आवाजें बाहर कोठी में या कोठी से बाहर कहीं सुनाई नहीं दे सकती थीं। अपने मुंह को आजाद पाकर हादम हुसैन गालियों पर उतर आया। पहले वो मुझे मादर पिदर आजाद गालियों में तोलता रहा, फिर धमकियां देने लगा। वजदान अच्छी तरह सुन लो, तुम अच्छा नहीं कर रहे। मेरे हमायती मुझे यहाँ से आजाद करवा के ले जाएंगे, फिर तुम उनके बहीमाना सलूक का निशाना बनोगे। सिकंदर और राना अजमत की सफाकी और दरिंदगी से तुम वाकिफ नहीं हो, वो तुम्हारा हशर हराब कर देंगे। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मैंने जहरहन लहजे में कहा, तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? शायद तुमने मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुना। मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, तुम्हारे हमायती इस तहखाने तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। मैंने इस धमकी अवेज आवाज में एक खास किस्म की जर्जराहट महसूस की थी और उसकी आंखों में भी सुर्खी उतर आई थी। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अभी तक तो तुम रनवे पर खड़े हो। तुम्हारी आवाज और आंखों में खौफ और दहशत ने जो तब्दीलियां पैदा की हैं, उनसे जाहिर होता है कि तुम टेक ऑफ करोगे तो तुम्हारी सिटी ही गुम हो जाएगी। क्या मतलब? अब वो बेपनाह सरासीमा नजर आने लगा। तुम इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या करना चाहते हो? मैंने मुस्काहेज अंदाज में उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात का जायजा लिया और सनसनीखेज लहजे में कहा, मिस्टर हादम हुसैन उर्फ खिदमतगार, काश तुमने अपने नाम की ही लाज रखी होती। हादम हुसैन का मतलब होता है कि हुसैन का हादम, मगर तुम तो रुसवाए जमाना राना अजमत के हादम निकले। उसका नमक हलाल करने के लिए तुम पाशा से नमक हरामी पर तैयार हो गए। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं इससे ज्यादा तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो तुम्हारी परवाज यहाँ से रवाना होगी, जो इस तहखाने की एक दीवार से दूसरी दीवार तक सफर करेगी। फिर तुम्हें पता चलेगा किन तिलों में कितना तेल है। अपनी बात खत्म करते ही मैंने कुव्वत सरफ करके हादम हुसैन के नीचे दबी हुई मेज को धकेला। वो मेज अपनी कोहना साली और मजबूती का सबूत देते हुए मुख्तलिफ किस्म की आवाजें पैदा करने के बाद उसके बदन के नीचे से सिरक गई। मेज हटते ही हादम हुसैन का मुस्काहेज अंदाज में बंधा हुआ बदन हवा में झूलने लगा। मैंने पांव की ठोकर मारकर मेज को दूर फेंक दिया। हादम हुसैन बड़ी ही कसमपुरसी की हालत में छत से लटका हुआ झूल रहा था। मैंने उसे अलविदा कहते हुए एक जोरदार धक्का दिया और तहखाने के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिया। तहखाने को छोड़ने से पहले मैंने पलटकर हादम हुसैन को देखा। वो सूजो वाटर पार्क लाहौर के एक झूले का मंजर पेश कर रहा था। वो फलकबोस झूले में नारंगी लिबास वाला एक जिन इस तरह अपने पांव को पकड़े इधर से उधर झूलता रहता है, जिसकी पुश में तफरी करने वालों को बैठने के लिए जगह होती है। इस किस्म की हरकत करने वाला एक झूला कश्ती की सूरत में क्लिफ्टन के साहल पर भी मौजूद है, लेकिन सूजो वाटर पार्क वाले झूले की अपनी ही एक शान है। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।